Okay. If you have doubts, folks, you can raise your hand, or you can, what you can also do is you can type it in the chat box. I encourage you not to unmute yourself for asking questions. That will maintain the decorum of the class. Okay. Okay, let's start the session, folks. Now, those of you who are joining for the first time, this is an open session that I'm having for macroeconomics. Some of you would be knowing me because I have taught your seniors in each particular college for their own examination, be it semester 4, semester 6 examination. So this is macro is one of my specialization areas. However, I do not, always take up macroeconomics, even though it's one of my favorite areas of study. Usually, you will study जो लोग e-commerce से हैं, you will come across the subject that I teach, econometrics, statistics, and in your coming semester, data analysis. So I teach R programming, Python, Tableau, so all these kind of courses apart from Indian economy. So that's about my background. Now let's start with the chapter, which is folks, please keep yourself on mute. I would otherwise have to remove you from the class. Now, so let's start with chapter number 4 of Freud. Now, this particular chapter, yes, Pranjal, this will be available on YouTube as well. So this particular chapter, although it's not there in your course when you see the text of the course, but more than the text, so अगर मैं आपको text दिखा दूं course का, not this, yeah. अगर मैं आपको text दिखाऊं course का, तो text में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है chapter number 4. See this, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ chapter number 4. But if you see the questions that have been asked every year, in fact आपकी readings के अंदर भी है, and every year you will see a question. We will see the questions as well. So that's why I'm taking up this particular section as well. So there is this entire controversy whether this is there in the syllabus or not, but I rather err on the right side than on the wrong side. So, and in fact, जो लोग people who I asked this question last time as well. How many of you are going to prepare for Indian Economic Service or civil services with economics as an option? Raise your hand, folks. Okay. Good. So this becomes in any case, this becomes a very important part of your course, this particular chapter. So हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर बात करी थी, let's do a small revision हम कि हमने क्या बात करी थी. If you talk about okay, so if you talk about this particular this classical economics, तो classical economics के अंदर हम क्या चीज सीखते हैं जो हमने chapter number 3 के अंदर देखा था, that classical economics says that only supply side factors determine the employment and output. If you remember, and this is one of the questions that is always asked in your papers as well as in all the competitive examination, कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे बोलते हैं कि ओनली सप्लाई मैटर्स. सो रिमेंबर दिस फेमस स्टेटमेंट दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. दे अज्यूम दैट डिमांड देयर विल नॉट बी एनी लैक ऑफ डिमांड. तो वो डिमांड के केस में कोई वहां पर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. In fact, the entire argument of supply side of classical economics is driven by supply side. And the other fact is कि ये लोग कहते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमल से मिनिमल होनी चाहिए. So for them, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, that for them they say that supply determine output होता है. और सप्लाई को क्या डिटरमिन करता है? सप्लाई को डिटरमिन करता है फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी आपके लेबर सप्लाई के फैक्टर्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैपिटल. ये जो है ये फैक्टर्स जो हैं ये आपके एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करेगी और एम्प्लॉयमेंट फिर उसके बाद आउटपुट को डिटरमिन करेगी. And all the other factors that you have, this we will talk about in this particular chapter. All factors like money, like prices,
like interest rate, these are all nominal variables which have no impact on employment and output. और ये जो है ये बेसिकली डिमांड, हम देखेंगे कि मनी का इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जो है वो मेजरली डिमांड पे पड़ रहा है, बट उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे नहीं पड़ रहा. सो विल लर्न अबाउट दिस टू pronged डिफेंस, बिकॉज ऑफ विच आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ एनी चेंजेस प्राइसेस, मनी या इंटरेस्ट रेट. So this is the essence. Now let me just show you जो हमने previous chapter के अंदर भी किया था, so that there is no communication gap as well. See, this is the chapter. You can watch the video as well. It's available on my channel, The Pink Professor. You can watch the video available, and it's also there on the website. Okay, you can also check the course on the website. Now सी क्लासिकल रेवोल्यूशन ये था. क्लासिकल रेवोल्यूशन कह रहे थे कि ओनली रियल फैक्टर्स इंपैक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर विल बी सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज ऑफ द इकोनॉमी, जो वापस अपनी इकोनॉमी को अपने इक्विलिब्रियम पे ले आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर कैपिटल फिक्स्ड और ये है. तो ये जो है आपका आउटपुट को क्या डिटरमिन कर रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कर रही है और कैपिटल स्टॉक डिटरमिन कर रहा है. तो कैपिटल स्टॉक अगर चेंज होगा या एम्प्लॉयमेंट चेंज होगी या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी. अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो कैपिटल, तो आपका जो वर्कर है वो ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है या इनएफिशिएंट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आउटपुट चेंज हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो दिस यू मस्ट हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्रीवियस दिस थिंग चैप्टर. सो on the basis of all of this they come up with this labor supply and labor demand curve, and उससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है. So labor supply and labor demand से हमें employment मिलता है और उससे output मिलता है. See this, let me delete everything maybe. Yeah. So ये आपका labor supply curve है, ये labor demand curve है, और उनके थ्रू आपके पास employment आता है, wage rate आता है और employment आता है, और आपका production function से आपके पास output आ जाता है. एंड उसी को आप नीचे लेके जाओगे तो आपके पास ये वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिल जाती है. And the argument here is that only supply factors that do not impact is basically कोई भी और factor impact नहीं करेगा. Aggregate demand का will have no effect on output. Basically ये कह रहे हैं कि factors that do not affect output or employment in the classical system do not impact the output or do not impact the output. तो कोई भी factor जो aggregate demand को affect कर रहा है वो आउटपुट को इम्पैक्ट नहीं करेगा. एंड इसी का एसेंस जो है अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे. सो इफ यू सी चैप्टर नंबर 4, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. लेट्स सी द स्टार्टिंग ऑफ इट. नाउ इफ यू सी द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इट्स फर्स्ट टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एग्रीगेट. It talks about something called as aggregate quantity theory of money, कि वहां क्लासिकल सिस्टम के अंदर मनी कैसे डिटरमिन हो रहा है. क्योंकि हमने आउटपुट डिटरमिन तो कर लिया. हमने पिछले चैप्टर में क्या करा, पिछले चैप्टर में हमने करा कि सप्लाई साइड फैक्टर्स जो हैं दे बेसिकली इम्पैक्ट द इकोनॉमी, एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो है थ्रू प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट को डिटरमिन कर रहा है. दिस वी हैव लर्न. बट लेट्स सी द डिमांड साइड. तो डिमांड साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले हम मनी को देखते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एग्रीगेट डिमांड पहले तो क्या है. अब एग्रीगेट क्लासिकल सिस्टम में एग्रीगेट डिमांड को देखने के लिए यू हैव क्वांटिटी ऑफ मनी. क्वांटिटी ऑफ मनी जो है डिटरमिन्स एग्रीगेट डिमांड, विच इन टर्न डिटरमिन्स प्राइस लेवल. दिस इन टर्न डिटरमिन्स द प्राइस लेवल. दिस इज द एसेंस ऑफ द QTM. इसको हम QTM बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. इसके दो वर्जन्स देखेंगे हम. सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली सेज व्हिच इज QTM जो है ये क्लासिकल वो है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. एंड यहाँ पर वी से दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन्स, विल सी दैट हाउ इट, कितना पैसा है इकोनॉमी के अंदर, वो डिटरमिन करेगा कि डिमांड कितना है, और वो डिमांड डिटरमिन करेगी कि प्राइसेस कितने हैं इकोनॉमी के अंदर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एंड इनके बीच में हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा प्राइसेस होंगे. सो देयर इज दिस यू विल सी दिस इन नेक्स्ट सेमेस्टर, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले जो है बच्चे,
वो नेक्स्ट सेमेस्टर में देखोगे। जब हम मॉनेटरीज के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि दैट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमेना, व्हिच बेसिकली मींस जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा प्राइस होंगे। सी व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस में आज की डेट में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो रहा है 9% का। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है 7% का। और ये क्यों है? इसका एक वन ऑफ द रीजंस इज दैट एक सप्लाई साइड फैक्टर तो है बट डिमांड साइड फैक्टर्स भी हैं कि इकोनॉमी के अंदर, स्पेशली यूएस जैसी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मनी जो है वो चला गया था। जब कोविड आया तो सेंट्रल बैंक्स ने, फेडरल रिजर्व ने, आरबीआई ने, सारे बैंक्स ने खूब सारा पैसा जो है पंपिंग किया इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस आज ज्यादा हैं। सो मनी सप्लाई जब ज्यादा होगा, नाउ टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये कैसे होता है। सपोज इकोनॉमी के अंदर एक कार है एंड एवरीवन हैज से 1 लाख रुपीज, सबके हाथ में 1 लाख रुपए हैं। सो द मैक्सिमम अमाउंट, जितने इकोनॉमी में 50 लोग हैं सबके पास 1 लाख रुपए हैं, so the maximum amount that can be bidded for this particular car, और इकोनॉमी एक ही कार है, is 1 लाख रुपीज। बट नाउ आई से सपोज सबके पास इकोनॉमी में 2 लाख रुपए हो गए। what do you think the price of the car will increase or decrease? what do you think will happen? Yes folks, you can type in whatever you want. what should happen? इकोनॉमी में एक कार है बट अब 2 लाख रुपए सबके पास आ गए, 50 हो गए, because people are now going to bid more for this car. So what you have understood from this example is that if there is no real production happening, ये real production है, real goods and services तो ये है, but if you put more money into the hand of people, ultimately it's only going to increase the price of this particular car. So this is essentially what we are talking about. That जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस via the route of aggregate demand. This is what they talk about. Now let's see the formulation of QTM. QTM की दो थ्योरीज हैं बेसिकली, ठीक है। QTM की दो थ्योरीज हैं, एक फिशर की इक्वेशन है और एक कैम्ब्रिज इक्वेशन है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फिशर इक्वेशन। Now this Fisher equation basically talks about the quantity of money and it relates it to कि कितना quantity of money होगा, money कितना है into into the velocity of money. What this velocity of money is. I'll explain you what this velocity of money is, and this is price into number of transactions. Now let's see what is this. This is कि आपके पास, सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास 300 रुपीज हैं और 1 रुपया जो है वो कितने क्या कहते हैं, वो कितनी बार यूज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज कि कितनी बार एक पर्टिकुलर रुपी जो है वो बार बार हाथ एक्सचेंज कर रहा है, इज इक्वल टू प्राइसेस की मार्केट में प्राइस रेट क्या है इनटू द नंबर ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिखने का और ज्यादा इंट्यूटिव तरीका क्या है, इसको आप लिख सकते हो mv इज इक्वल टू पी वाई, विच एसेंशियली मीन्स ये y है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज है और उनका प्राइसेस। तो ये तो हो गई आपकी नॉमिनल इनकम। नॉमिनल जो है आप इसको इनकम बोल सकते हो, इसको आप अगर y को आप इनकम बोल रहे हो तो नॉमिनल इनकम हो गई, और ये आपका मनी सप्लाई और ये आपका वेलोसिटी। सो इसेंशियली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, सी दिस, ये यहां पर दे रखा। essentially what we are talking about is कि मनी जो है, कितना मनी है इकोनॉमी में, वो डिपेंडेंट है कि आपकी इकोनॉमी में कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बने। एंड एक और चीज का है, एक और चीज का फंक्शन है कि ये जो मनी है कितनी बार हाथ चेंज कर रहा है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है? नाउ लेट्स सी कि वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। Now, what do you think, folks, कि अगर आपके पास जब से आप लोगों ने तो देखा ही है, जब आपके पास पेटीएम आ जाता है, गूगल पे आ जाता है, और से ये ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है, क्रेडिट जैसे सर्विसेज आ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं। आजकल शायद से आपने एक और चीज सुनी हो जो बहुत ज्यादा फैशन में है, विच इज बाय नाउ पे लेटर। सुना है इसके बारे में? किसी ने सुना है इसके बारे में? आजकल बहुत सारे उस पे अमेजोन पे भी आता है, बाय नाउ पे लेटर, हर हर जगह पे आ रहा है कि आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो।
all of this is basically increasing the velocity of money. आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, ज्यादा ट्रांजैक्ट कर रहे हो आप, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो डिपेंडेंट होती है कि इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है इकोनॉमी के अंदर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट की, जस्ट अ सेकंड, हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि कितना पेमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही हैं. सो लेट्स सी दिस. ये देखो, यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. ये देखो, velocity of money is determined by the payment habits and the payment technology in the society. जितना ज्यादा पेमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा उतना ज्यादा वेलोसिटी, उतनी ज्यादा तेजी से मनी हैंड चेंज करेगा. अगर आपका ट्रेडिशनल सिस्टम हो जिसमें आप पहले चेक लिखोगे और फिर चेक क्लियर होगा, तो इमेजिन पहले आपने एक दिन आपने एक चेक लिखा, फिर वो चेक 3 दिन बाद क्लियर हुआ किसी और के पास, फिर उसके बाद वो किसी और के पास गया, तो इसके चक्कर में जो मनी था वो इट इज चेंजिंग हैंड्स वेरी स्लोली. If money is changing hands very slowly, then the amount of things that you can buy are going to be slow as compared to अगर ये money तेजी से हाथ change कर पाए. So this is the concept of velocity of money. Now what this particular theory suggests is that the quantity of money is the quantity of money is related to the price index as well as the current output. सो ये आपका वेलोसिटी ऑफ मनी है कि या ये आपका बेसिकली है mv इज इक्वल टू py. नाउ इस पूरी इक्वेशन के अंदर इफ यू सी, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पहले देखते हैं कि क्या होता है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो y है वो क्या है, वो फिक्स्ड है और सप्लाई साइड ड्रिवन है. सप्लाई साइड डिटरमिन करती है. रिमेंबर हमारा जो वाई था क्लासिकल इकोनॉमी में एएस जो था वो ऐसा था, तो वो फिक्स था. तो दैट मींस आई कैन पुट अ बार है. देन ये जो वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, ये ओवरनाइट नहीं चेंज करता अंटिल अनलेस कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए जो सभी एकदम से डिजिटल पेमेंट बैंक्स को अडॉप्ट कर ले. बट यूजुअली जो आपका वेलोसिटी ऑफ मनी है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, तो ये भी शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट होता है. What this now shows you is that there is a direct relationship between money and prices. जितना ज्यादा मनी होगा इकोनॉमी के अंदर गिवन द वेलोसिटी, उतने ज्यादा प्राइसेस होगा, क्योंकि आउटपुट आपका फिक्स्ड है और वेलोसिटी ऑफ मनी जो है दैट इज आल्सो फिक्स्ड इन शॉर्ट रन. सो therefore this is essentially the quantity theory of money. Now see this. ये देखो, प्राइस लेवल वेरीज डायरेक्टली विद क्वांटिटी ऑफ मनी. ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. टी के साथ अगर इसको जो टी लिख लोगे तो वो इनवर्सली है. एंड डायरेक्टली विद द वेलोसिटी ऑफ मनी. तो अगर आप इसको लिखो प्राइसेस को mv इज इक्वल टू py को इस फॉर्म में लिख दो, वेलोसिटी के फॉर्म में या प्राइसेस के फॉर्म में लिख दो. ये भी फॉर्म ठीक नहीं है, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है. या ये देखो, दिस इज द फॉर्म दैट आई वाज टेलिंग यू कि हमारा ये जो है ये शॉर्ट रन के अंदर फिक्स है, ये आपको आउटपुट फिक्स है. दैट मींस प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मनी से, अमाउंट ऑफ मनी से, डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी से, और इनवर्सली रिलेटेड है y से. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट जो रिलेशनशिप है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किस चीज के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है? रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइसेस. This is the first relationship matters. The relationship, direct relationship between money in circulation and prices is what is important. देखो, so the velocity of money is predetermined. It's not simply defined as the residual to equate mv is equal to py. So this equation of exchange is not merely a definition. Output is fixed from the supply side. एंड दिस बेसिकली शोज दैट देयर, और मनी सप्लाई जो है वैसे ही वो एक्सोजेनसली गिवन होता है, आरबीआई देता है. सो देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. दिस इज द एसेंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि जितना ज्यादा आपका पैसा होगा मार्केट में उतना ज्यादा आपके प्राइसेस हैं. ठीक है. Now, if you double the prices, if you double the amount of money, the prices are going to double. If you increase it by 10%, the prices are going to increase by 10%.
ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन्स द प्राइसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये फिशर का या फिर आप कह सकते हो ये क्यूटीएम का एसेंस है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एसेंस ही यही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गोइंग टू डिटरमिन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी। देन दी अदर, अब ये जो है ये थोड़ी सी मैकेनिकल अप्रोच थी। अब ये मैकेनिकल अप्रोच क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर आपने मनी डिमांड के बारे में नहीं बात करा, आपने एक तरीके से बात क्या करी कि बॉस मेरा प्राइस इनटू क्वांटिटी इतना है और मेरा वेलोसिटी इतना है, ये मेरा मनी सप्लाई है। तो एक तरीके से आपने एक एक्सियम दे दिया और एक रिलेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी रादर देन अ रिलेशन। अगर आप कीन्स की थ्योरी पढ़ते हो तो कीन्स क्या बोलता है? कीन्स बोलता है कि मनी डिमांड का एक फंक्शन है। मनी डिमांड दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, किसी को याद है मनी डिमांड का क्या फंक्शन था? एनीवन रिमेंबर्स कीन्स के केस में? कौन फोक्स? के वाई माइनस एच आई, ब्यूटिफुल। कि मनी जो है वो जिसको हम बोलते थे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस डिपेंड्स ऑन इनकम, नॉमिनल इनकम एज वेल एज योर इंटरेस्ट रेट्स। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा मनी डिमांड रखेंगे, जितनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उतना कम मनी डिमांड करेंगे। तो यहां पर आपने एक रिलेशनशिप बताया है, यहां पर आपने एक इंट्यूटिवनेस बताई कि क्यों है। यहां पर कहीं भी कोई इंट्यूटिवनेस नहीं है, ठीक है, यहां पर कहीं पर भी कोई इंट्यूटिवनेस नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि कितना, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ मैकेनिकल डेफिनेशन इन द सेंस कि मनी को कितना काम करना पड़ेगा, मनी को वेलोसिटी इज बेसिकली कितनी बार उसको हैंड चेंज करना पड़ेगा सो दैट वो आउटपुट इनटू प्राइसेस के इक्वल हो जाए। सो दिस इज अ मोर ऑफ अ मैकेनिकल डेफिनेशन वेयर कोई एसेंस नहीं है, ठीक है। yes Laiba, essentially increase in prices will lead to increase in no उल्टा बोल रहा हूँ, increase in money supply will lead to increase in prices, ठीक है। so therefore this particular जो postulation है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, बट उसी को ज्यादा theoretically समझाने के लिए this came the new emphasis came on Cambridge approach। अब Cambridge ने सिर्फ रीस्टेट किया, remember they have just restated QTM, but restated QTM in a form that it looks like a theory of demand for money। तो ये आप Cambridge approach को बोल सकते हो theory of demand for money। it's just like the theory of Keynes of demand for money, but Keynes के केस के अंदर you had two factors, both income and rate of interest, because Keynes had also talked about speculative demand for money। उसने कहा था कि पैसे को सिर्फ आप कैश के फॉर्म में नहीं रखोगे, you can also invest money in form of bonds in form of speculation। सो वहां पर उसने स्पेक्यूलेशन को और बॉन्ड्स को एक सेपरेट एसेट माना था जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपने पैसे की डिमांड के बारे में बात करी, यहां बाकी ऑल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में बात नहीं करी। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द थ्योरीज ऑफ कीन्स एंड कैम्ब्रिज। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो जो पहले रिलेशन थी क्यूटीएम की, अरविंद फिशर की, दिस रिलेशनशिप वाज मोर मैकेनिकल, बट इन्होंने इसको लेस मैकेनिकल बताया और इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल डिसीजन टू होल्ड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा, इंसान कितना पैसा अपने पॉकेट में रखेगा वो देखना है। अब वो जो देखना है, इट विल बी अ प्रोपोर्शन ऑफ द नॉमिनल इनकम दैट अ पर्सन हैज। बात वही बिल्कुल कर रहे हैं, बट यहां पर मनी डिमांड के बारे में बात कर दी है कि इंसान, कोई भी इंसान अपने पॉकेट में कितना पैसा रखेगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ हिज इनकम। आप एक रिक्शा वाले के पास चले जाओ तो उसके पॉकेट में कितना पैसा होगा एज कंपेयर टू मेरी पॉकेट में कितना होगा, एज कंपेयर टू अंबानी के पॉकेट में कितना होगा। तो सबके पॉकेट के अंदर जो कैश है विल बी डिफरेंट and is dependent on the amount of income that person has, prices into the real income। so essentially उन्होंने मनी डिमांड को बोल दिया the proportion of income that will be optimal to hold in form of money is k assumed to be stable। तो कुछ k proportion जो है वो आप कैश के फॉर्म में अपने पास रखोगे and which depends on the payment habits of the society। अगेन यहां पर भी ये जो k है, you can think of it as some kind of inverse of velocity। remember
जो हमारा पिछला इक्वेशन था वो था mv इज इक्वल टू पी वाई। यहां पर हम बोल रहे हैं मनी डिमांड इज इक्वल टू k इंटू पी वाई। कैन आई से दिस k इज नथिंग बट समथिंग लाइक 1/v? Can I say that? Or yeah, you can say something like this. Can I say this as something like this? v को सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पर अगर मैं इसको k को नीचे ले जाऊं, यहां पर अगर k को नीचे ले जाऊं तो I can write this as md into 1/k is equal to py। अब बात वैसे तो ठीक ही लिखा था। सो दिस 1/k I can say that is similar to velocity of money। सो यहां पर भी बात वही है, बट आपने उसको रीराइट करके एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया है, where you are saying that the amount of money that you are holding is some function which is a stable function. That is an important thing, which is a stable function of the amount of money that you have, or the amount of nominal money that you have। और इस केस में भी क्या है, इस केस में भी ये आपका y जो है, ये हम क्या कहते हैं कि ये तो सप्लाई साइड ड्रिवन है, और k जो है हम कह रहे हैं कि स्टेबल है, तो ये भी फिक्स्ड है एक तरीके से। तो दिस ऑल्सो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन m एंड p। बात वही है, कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, दोनों की दोनों थ्योरीज यही कह रही हैं, देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द प्राइसेस इन द इकोनॉमी। So can you see that v is equal to 1/k? So the two formulations are similar. However, Cambridge का जो version है that is closer to a modern monetary theory, because उसने quantity theory को जो दिया है उसको theory of money demand बना दिया है। यहाँ पर आपने कोई मैकेनिकल थ्योरी नहीं दी, अपने डिमांड की थ्योरी दी है। और इसी को ऑल्टरनेटिव जो थे आपने आपने यहाँ पर उसने बोला कि पैसे आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ कैश के फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। इसी को एग्जैक्टली कीन्स ने अटैक किया था और न्यू थ्योरी ऑफ मनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मनी डिमांड विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनकम बट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। सो लेट्स नाउ सी, सो ये आपकी होगी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब हम ये देखेंगे कि ये एग्रीगेट डिमांड से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ना है। दिस इज, हमने एग्रीगेट सप्लाई तो देख लिया कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल सिस्टम में कैसे आता है। क्लासिकल सिस्टम के अंदर एग्रीगेट डिमांड आता है कि ये आपकी लेबर डिमांड है, ये आपकी लेबर सप्लाई है, ये आपकी वेजेस हैं, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इस एम्प्लॉयमेंट को आप नीचे लेके जाओ, ये आपका लेबर, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से आपने आउटपुट निकाल दिया, ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, और इसी एम्प्लॉयमेंट पे आपको दिख गया कि यहाँ पर y जो है वो स्टिल है, ये जो y है ये y है, y स्टार, ठीक है। सो लाइबर्स क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ सप्लाई साइड, नो, दोनों की दोनों सप्लाई साइड ही है कि मनी डिमांड की थ्योरीज हैं, बट स्टेटिंग का तरीका अलग है। फिशर की थ्योरी जो है वो बेसिकली कहती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क मनी नीड्स टू डू टू बी इक्वल टू द आउटपुट इन द मार्केट। वेर एज जो कैम्ब्रिज की अप्रोच है वो एक्चुअली में क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी को रीस्टेट करता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, कि मार्केट में कितना पैसे का डिमांड होगा वो डिपेंड करता है नॉमिनल इनकम के ऊपर। तो बात वही है, और मनी सप्लाई मनी डिमांड की इक्वल तो होगी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मनी डिमांड तो वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई के तो इक्वल होगी। से एंड कैन यू सी दिस, मनी सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू मनी डिमांड। तो हम यहाँ पर इफ यू रिमेंबर, जब हम ISLM की बात करते हैं तो हम कहते हैं LM कर्व जो है उस वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल है उसके अंदर, और गुड्स मार्केट के लिए IS है। यहाँ पर हम कुछ और बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि गुड्स मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट दोनों एग्रीगेट डिमांड में आई हुई है। एग्रीगेट डिमांड जब बन रहा है तो एग्रीगेट डिमांड शोज बोथ, एग्रीगेट डिमांड जो है यहां पर हम दिखाएंगे कि इट शोज बोथ इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। यहां पर भी हमने एग्रीगेट डिमांड बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के अंदर है, बट यहां पर भी हम यही चीज देखेंगे कि कैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो आ रहा है इनके मनी सप्लाई से।
इनके मनी डिमांड के फंक्शन है. सो इफ यू सी दिस let's see this. Let us suppose that in the beginning आपका इक्विलिब्रियम था मनी डिमांड मनी सप्लाई के, देन क्वांटिटी ऑफ मनी डबल्स. अब पहले मनी डिमांड वाज इक्वल टू मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई जो है वो 2x हो गया. तो अब इंडिविजुअल्स विल ट्राई टू रिड्यूस देयर होल्डिंग्स बाय पुटिंग यूज टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. अब मनी सप्लाई जब ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, एक्सेस मनी को उससे क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है, कंजम्पशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से जब आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ज्यादा डिमांड करोगे, ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. दिस इज व्हाट इट इज शोइंग यू, दैट एन increase in the amount of money, people will try to reduce their money holdings, क्योंकि उनको इतना डिमांड फॉर मनी नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा. सप्लाई ऑफ मनी को आप कहाँ चैनलाइज करोगे, उससे लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. मैंने वही बोला था ना कि आपके पास 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, बट कार तो एक ही है, तो आप ज्यादा कहोगे कि मुझे कार दे दो ये. तो आपके पास लिमिटेड गुड्स हैं, आपके पास पैसा आता है, तो आप उन गुड्स को चेस करोगे. जब आप चेस करोगे उन गुड्स को तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. So they ultimately lead to increase in the demand for commodities, and increase in demand for commodities will lead to upward pressure in prices. So in pure classical terms, there is too much money chasing too few goods. And अगर आपका आउटपुट अनचेंज है, क्योंकि क्लासिकल सिस्टम में आउटपुट जो होता है वो एस ऐसे होता है, अगर आपका आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा, then what will happen is that the new equilibrium will only be reached when the prices are doubled. कि आपका नया इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब आपके प्राइसेस, अगर आपका क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो गया तो आपके प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे, एंड दैट इज वेयर द इक्विलिब्रियम विल लाई. सो दिस इज व्हाट द थ्योरी विल टॉक अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, कि एग्रीगेट डिमांड कैसे है. अब QTM के अंदर ही था एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी. सो एग्रीगेट डिमांड की कोई एक्सप्लिसिट थ्योरी नहीं है फॉर क्लासिकल. कीन्स के केस में एक एक्सप्लिसिट थ्योरी थी जिसमें वो कहता था कि aggregate demand is dependent on the amount of consumption, it dependent upon investment, government expenditure and net exports. तो उन्होंने जो एग्रीगेट डिमांड की जो थ्योरी दी थी वो एक एक्सप्लिसिट थ्योरी दी थी. बट क्लासिकल सिस्टम के अंदर एग्रीगेट डिमांड की जो थ्योरी है दैट इज एन इम्प्लिसिट थ्योरी. QTM के अंदर से अपने आप निकल के आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगा. नाउ लेट अस सी दिस कि वो कैसे आ रहा है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, पहली बात तो इस डायग्राम को बोल जाओ, एग्रीगेट डिमांड किसके बीच में बनता है, प्राइस एंड वाई, पी एंड वाई के बीच में एग्रीगेट डिमांड बनेगा. जैसे एग्रीगेट सप्लाई भी पी एंड वाई के बीच में बनेगा. अब हमें पता है कि देयर इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस एम वी पी वाई. नाउ सपोज मैं कहता हूं कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है, प्राइसेस और आउटपुट हैं. प्राइसेस मैंने बोल दिया कि प्राइस लेवल इज 12, और कोई एक कमोडिटी बनी है, और इनकम जो है द आउटपुट इज 100. सो आई कैन से दैट द नॉमिनल इनकम इन द इकोनॉमी इज 1200. So MV is equal to 1200. Now, can you think of it as, जो लिंक के पास मैथ्स थी, can I say this is a rectangular hyperbola की इक्वेशन, P into Q, अगर मैं बोलूं A into B is equal to C. This is an equation of a rectangular hyperbola. ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ऑल कॉम्बे, और अब इस इक्वेशन में देखो क्या है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए बता रहा हूं. आई एम सेइंग दैट प्राइसेस मुझे 12 दे रखे हैं, मुझे आउटपुट दे रखा है कि 100 यूनिट का है. दैट मीन्स कि टोटल जो कंट्री के अंदर आउटपुट बना है वो 1200 यूनिट, 1200 रुपए का बना है. अब अगर मैं कह देता हूं कि मुझे वेलोसिटी फिक्स्ड है कि 1 रुपया जो है वो 4 बार घूम रहा है, 4 बार हाथ घूमता है, मुझसे किसी और के पास जाता है, उसके बाद किसी और के पास आता है, और उसके बाद किसी और के पास आता है. ऑन एन एवरेज 1 रुपी जो है वो 4 बार हाथ चेंज कर रहा है. तो आई नो कि वेलोसिटी जो है वो 4 है. ठीक है, मैंने कहा कि वेलोसिटी 4 है,
उस केस में मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी 4 है, ठीक है, और P इंटू वाई जो है वो 1200 है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि जो मनी है, मनी सप्लाई इस आउटपुट से जो कंसिस्टेंट मनी सप्लाई है वो सिर्फ 300 रुपए हो सकता है। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं है? ओनली 300 रुपीज कैन सपोर्ट इंटू 4, ये तो फिक्स्ड है, कैन सपोर्ट एन आउटपुट लेवल ऑफ 1200। ये सबको समझ में आया कि नहीं? ये 350 भी नहीं हो सकता और ये 250 भी नहीं हो सकता। सो और हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली पी और वाई के बीच में। अब मैंने आपको अगर बोल दिया कि इकोनॉमी के अंदर 300 रुपए पड़े हुए हैं और मैंने आपको कह दिया कि 4 वेलोसिटी है, तो आपको पता चल गया कि इकोनॉमी के अंदर 1200 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बने। अब 1200 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बन सकते हैं? कि 12 रुपए प्राइस हो और 100 आउटपुट बना लो, या 2 रुपए प्राइस हो और 600 रुपीज आउटपुट बना लो। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर आप बेसिकली आपको ये मिलते जाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आपको मिलेगा आंसर 1200 ही। और यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर का एरिया इसके अंदर का एरिया हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे वो कॉम्बिनेशंस बता रहा है, ये जो अब प्राइस और वाई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, और वो एग्रीगेट डिमांड ही है, बट दिस एग्रीगेट डिमांड is basically for a level of money supply which is 300. This 300 rupees is multiplying 4 times, ठीक है। इकोनॉमी में 300 रुपए थे, बट हर रुपया 4 बार हाथ चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से दी इकोनॉमी में आउटपुट बन रहा है वो 1200 रुपए का बन रहा है। अब वो 1200 रुपए का किसी भी कॉम्बिनेशन में बन सकता है ऑफ पी एंड वाई। दिस इज द इसीलिए इसीलिए इस एम वी इज इक्वल टू पी वाई जो है, ये इक्वेशन हमें देती है इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, QTM गिव्स राइज टू द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इन द इकोनॉमी। नाउ व्हाट हैपेंस, let's see what happens if the money supply changes। अगर मनी सप्लाई 300 से 400 हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ 400 एंड ईच रुपी इज वर्किंग 4 टाइम्स। दैट मीन जो आउटपुट होना चाहिए आपका, डिमांड का जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 1600। सो ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ पी एंड वाई विच इज गोइंग टू गिव यू 1600 नॉमिनल डिमांड इज गोइंग टू शो यू दिस। ये देखो एग्रीगेट डिमांड, तो जैसे ही आपने मनी सप्लाई चेंज किया आपका एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हो गया। सो जितना ज्यादा मनी सप्लाई चेंज करोगे उतना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जितना आप मनी सप्लाई कम करोगे वो उतना अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो एग्रीगेट डिमांड इज नाउ डिपेंडेंट ऑन हाउ मच मनी सप्लाई इज देयर इन द इकोनॉमी। सो दिस इज द एंटायर थ्योरी। नाउ लेट्स सी दिस। Let's see the initial money supply is 300. Now, according to this equation, my must be equal to P into y must be equal to 1200. So all across the axis you will find P into y is equal to 1200. इस पूरी की पूरी लाइन के अगेंस्ट। Now अगर वो 400 हो जाएगा तो P into y must now be equal to 1200, तो इसीलिए आपका शेड्यूल जो है बाहर शिफ्ट हो जाएगा। An increase in money supply shifts the aggregate demand to the right. ना आपने अगर मनी सप्लाई जो है वो बाहर, अगर हमारा जो आउटपुट है एएस जो है वो यहाँ है, और आपने वाई डी बना दिया अपना मनी डिमांड, तो ये आपका प्राइसेस आ गया, ये आपका प्राइसेस आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया। अब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करते रहो, मनी सप्लाई को आपने इंक्रीज किया तो आपका डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया, आपके सिर्फ प्राइसेस हो गए। अगर आपने 2 गुने से मनी सप्लाई इंक्रीज किया तो आपका प्राइसेस भी 2 गुना से बढ़ गया। अगर आपने प्राइसेस फिर बढ़ा दिया तो आपने मनी सप्लाई फिर बढ़ा दिया तो आपने प्राइसेस जो है फिर बढ़ा दिए। सो जितने से आप सप्लाई या मनी सप्लाई चेंज करोगे उतने से आपका प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो देयरफॉर मनी सप्लाई हैज नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी।
It is just a nominal factor. Money supply is just a nominal factor. It has no impact on the real factor, which is output. आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को हम रियल फैक्टर्स बोलते हैं, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है ऑन रियल फैक्टर्स. देन so this is what we are talking about. You can read this. The classical theory of aggregate demand is termed as an implicit theory, not an explicit theory, that it does not focus on components of aggregate demand and explains the factors that determine level. Instead, classical theory क्या कह रही है, वो बता रही है कि given MV, given the value of money and velocity implies a given value of money and velocity implies the level of P into Y that is required for equilibrium in the money market. For money demand to be equal to the existing money supply. तो यहाँ पर वो बेसिकली इसको मनी एग्रीगेट डिमांड को मनी मार्केट के साथ इक्वेट कर देता है कि कितना मनी इकोनॉमी में है और कितना आउटपुट होना चाहिए कि इतना मनी डिमांड आपका पास हो जाए. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करें, ये आपका मनी सप्लाई है. रिमेंबर दिस इज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है. ठीक है, तो हम बेसिकली इसकी थ्योरी में क्या करें कि आपकी कंट्री के अंदर आउटपुट कितना होना चाहिए, आपकी कंट्री के अंदर आउटपुट कितना होना चाहिए कि इस आउटपुट के साथ जो डिपेंडेंट मनी डिमांड है वो मनी सप्लाई की इक्वल हो जाए. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी, इसीलिए इम्प्लिसिट थ्योरी है यहाँ पर. So that is why this is an implicit theory where you are saying that the amount of money supply is basically determine the amount of output that is required. This is the aggregate demand. The amount of output that is output that is required for the money demand to be equal to money supply. If money demand exceeds मनी सप्लाई, अगर मनी डिमांड एक्सीड्स मनी सप्लाई तो उसकी वजह से पीपल विल ट्राई टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर्स और प्राइसेस कम हो जाएंगे. इफ मनी सप्लाई इज मोर देन मनी डिमांड देन पीपल विल स्पेंड मोर और प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सी, if money demand exceeds money supply, there will be a spillover on the commodity market as individual will try to reduce their expenditure on the commodity, and if it falls short, then people will try to increase their expenditures. Okay, so this is all points along, remember this line, all the YD schedule are points at which firms and households are in equilibrium with respect to their money holdings and also with respect to their expenditures on commodities. तो कितने commodity, तो वो जो आपका AD कर्व है वो दोनों चीजें हैं, वो मनी मार्केट भी दिखा रहा है, वो गुड्स मार्केट भी दिखा रहा है यहाँ पर. In this sense, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अरीबा I'll just explain it to you, but जिनको मैक्रो में इंटरेस्ट है, in this sense this is similar to the Keynesian structure. Keynesian के अंदर भी ISLM से ही आता है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व. तो और ISLM में जब आप ISLM की बात, इक्विलिब्रियम की बात करो तो गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम है. यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि आपका अगर मनी सप्लाई, अगर हम बात करें, ये देखो ये मनी सप्लाई है इनटू V जो है वो तो हमें पता है वेलोसिटी कितना काम करना है और P इंटू वाई. तो हम कह रहे हैं अरीबाज क्वेश्चन, इफ मनी डिमांड एक्सीड्स मनी सप्लाई there will be spill over in the commodities market because people will try to reduce their expenditures. अगर मनी डिमांड ज्यादा है मनी सप्लाई से तो लोग क्या करेंगे, आपका ये जो पॉइंट, ये जो है ये ज्यादा है, सॉरी ये जो है आपका मनी डिमांड जो है वो ज्यादा है. लेट्स मी राइट दिस एज M इज इक्वल टू K इंटू PY. ठीक है, ये आपका मनी डिमांड है और ये इसी के मनी सप्लाई की इक्वल है. अगर आपका मनी डिमांड ज्यादा है, यही हमने बात करी थी ना, हमने क्या बात करी थी, मनी डिमांड क्या है K इंटू PY, राइट, और मनी सप्लाई क्या है M. अगर मनी डिमांड आपकी ज्यादा है मनी सप्लाई से,
can you change the money supply, Ariba? Can you change the money supply? No. तो मनी सप्लाई अगर चेंज नहीं हो सकती तो एक्सोजेनसली गिवन है ना, वो तो आरबीआई दे रहा है आपको। तो आप किस तरीके से वापस इक्विलिब्रियम पे आओगे कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। ओनली इफ यू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर्स देन ओनली मनी डिमांड विल फॉल एंड वापस आप मनी सप्लाई की इक्वल आ जाओगे। सिमिलरली अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा है तो आपको अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, आपके प्राइसेस एसेंशियली बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। सो मनी डिमांड और मनी सप्लाई इस तरीके से, मनी सप्लाई जो है वो मूव नहीं करेगा, आपका मनी डिमांड को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मनी सप्लाई ज्यादा है कि कम है। और जब हम कहते हैं मनी डिमांड को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका ये चीज भी फिक्स्ड है और ये चीज भी फिक्स्ड है, दैट मींस प्राइसेस एडजस्ट होंगे। अगर आपका मनी सप्लाई ज्यादा है मनी डिमांड से तो क्या होता है, तो उसकी वजह से प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना होना चाहिए। यही तो होगा ना। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप कार के लिए बिड कर रहे हो और अब आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा आ गया आपके हाथ में, तो आपने क्या किया, कार के लिए बिड ज्यादा कर दिया, तो बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ गया, P/Y भी तो बढ़ गया आपका। तो all it leads to is increase in expenditure. This is essentially the this is essentially how money demand and money supply are equal, and goods market भी of course equilibrium है क्योंकि उसमें हम expenditure on commodities के बारे में बात कर रहे हैं। Now comes the important part of classical theory, ये बहुत ज्यादा important theory है, theory of interest rates. Now components, अब ये जो है components of aggregate demand जो है, ठीक है, यहाँ पर अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहली बार हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की क्लासिकल सिस्टम के अंदर। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन डिटरमिनिंग द इंटरेस्ट रेट। एंड इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली एस्टैब्लिश करेगा कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एक्सोजेनस चेंज, कि अगर आप एम चेंज कर दो, अगर आप मनी सप्लाई चेंज कर दो, अगर आप इन्वेस्टमेंट चेंज कर दो, कोई भी चेंज कर दो, कोई भी एक्सोजेनस चेंज, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, तो क्लासिकल सिस्टम में कोविड जैसी सिचुएशन भी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगी। सो दैट इज इंश्योर्ड बाय इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट जो है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट इस तरीके से चेंज हो जाएगा, कोई भी एक्सोजेनस शॉक आया इकोनॉमी में, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि वो एग्रीगेट डिमांड को चेंज होने नहीं देगा। तो इंटरेस्ट रेट, यू कैन थिंक ऑफ इंटरेस्ट रेट इन क्लासिकल सिस्टम एज अ शॉक अब्सॉर्बर, और यू कैन थिंक ऑफ इट एज योर एयरबैग्स, जो गाड़ियों में एयरबैग्स होते हैं। it is the airbag which absorbs all the shock, कि कोई भी क्रैश हुआ तो एकदम से शॉक सारा एयरबैग अब्सॉर्ब करेगा और इंसान को इफेक्ट नहीं होने देगा। सिमिलरली यहां पर इंटरेस्ट रेट क्लासिकल सिस्टम के अंदर एयरबैग की तरह काम करता है, वेयर इट डज नॉट लेट एनी एक्सोजेनस चेंज, या एक्सोजेनस चेंज बोल दो, एक्सोजेनस से कोई भी इवेंट बोल दो, उसको कोई भी इंपैक्ट नहीं करने देगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एज इट इज उतना ही रहेगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट अब्सॉर्ब कर रहा है उसका शॉक। और बाय चांस एग्रीगेट डिमांड चेंज भी हो जाए तो भी आउटपुट चेंज नहीं होगा, देन ऑल्सो आउटपुट विल नॉट चेंज। कैन समवन कैन टेल मी व्हाई, कि अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज भी हो जाए तो भी आउटपुट नहीं चेंज हो सकता क्लासिकल सिस्टम में? व्हाई इज दैट सो? Come on folks, exactly because AS is fixed, आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आपने फिक्स कर दिया। अगर एग्रीगेट डिमांड
मूव भी कर जाए, कुछ भी मूव कर जाए, तो भी आपका आउटपुट मूव नहीं हो सकता। बट पहली केस में ही आपका इंटरेस्ट रेट इस तरीके से एडजस्ट कर जाएगा कि वो एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट नहीं होने देगा। लेट्स सी दिस नाउ। क्लासिकल सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम रेट जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, कि इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों में। कि पहली बात, इंटरेस्ट जो है वो किस चीज पे होता है, वो बॉन्ड्स पे होता है। अगर किसी को पैसा बोरो करना है, ठीक है, दो तरीके के लोग हैं। एक जो है वो बोरो करेंगे मनी, और दूसरे होंगे जो लेंड करेंगे मनी। जिस रेट पे बोरोइंग और लेंडिंग होगी उसका इक्विलिब्रियम देखेंगे तो उस पे हमें इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। नाउ क्लासिकल सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि बॉन्ड्स के बेसिस पे हो रही है बोरोइंग और सेलिंग। जिसको भी खरीदना है वो बॉन्ड खरीद लेगा, जिसको भी बेचना है वो बॉन्ड बेच लेगा। तो जिसको पैसा चाहिए, ठीक है, बोरोवर जो होगा वो बॉन्ड जो है सेल करेगा। ठीक है, बोरोवर जो है, ध्यान रखना, बोरोवर जो है वो बॉन्ड सेल करेगा। दैट मींस बोरोवर जो है वो सप्लायर ऑफ बॉन्ड होगा। मुझे अगर पैसा बोरो करना है, यहां पर कंफ्यूज मत करना है, अगर मुझे पैसा बोरो करना है तो मुझे बॉन्ड देने पड़ेंगे। मैं, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट आपसे बोरो करती है, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है? गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देती है ना, कि दिस पर्सन हैज आई बोरोड फ्रॉम दिस पर्सन। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपसे बोरो करे, कोई भी आपको किसी को भी बोरो करना है, तो उसको आपको सप्लाई करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड का सप्लाई, बॉन्ड मैं आपको दे रहा हूँ। सिमिलरली जो लेंड कर रहा है वो बाय करेगा बॉन्ड। जब बॉन्ड बाय करेगा तभी तो उसको पैसे देगा ना। बॉन्ड खरीदेगा तो उसको पैसे देगा, जिसको चाहिए उसको। तो दिस विल बी दी डिमांड फॉर बॉन्ड। तो जो लेंडर है, जो सेवर है, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ सेवर, जो सेविंग कर रहा है वो डिमांड करेगा बॉन्ड की, कि मुझे बॉन्ड चाहिए, मुझे अपना पैसा, मेरे पास एक्सेस पैसा है, मुझे मुझे डिमांड, बॉन्ड की डिमांड है, मुझसे पैसा ले लो और मुझे इंटरेस्ट रेट दे दो। तो इस तरीके से डिमांड ऑफ बॉन्ड और सप्लाई ऑफ बॉन्ड की वजह से आपके पास ये सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज नथिंग बट people who are borrowers, and demand for loanable funds is people who are savers। इसमें कंफ्यूज मत करना। अब लोग जो हैं वो दो तरीके के लोग हैं, जो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा डिमांड कर रहे, जो कह रहे हैं कि भैया हमें पैसा चाहिए। ठीक है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यहाँ पर मैंने फिर उल्टा लिख दिया क्या? एक borrowing consists of supply of standard bonds, lending consists of buying of bonds. Supplier of bonds are firms, investment through sale of bonds, and the demand for bonds, demand for bonds. Here, on the demand for bonds are individual savers. In the classical system, positive function of rate of interest. ठीक है, ठीक है, just a second folks। डिमांड फॉर, अच्छा सॉरी, बॉन्ड्स नहीं है, फंड्स के बारे में बात हो रही है, सॉरी। बात वहां पर मैं ठीक कह रहा था, बट यहाँ पर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स के बारे में, फंड्स के बारे में। तो डिमांड कौन कर रहा था? डिमांड फॉर बॉन्ड्स अलग चीज है, डिप्ला और प्राइस है। डिमांड कौन कर रहा था उसकी, बॉन्ड्स की? हाउस होल्ड्स। डिमांड फॉर बॉन्ड्स, रिमेंबर,
और सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स कौन कर रहा था? वो कर रहा था फर्म्स और गवर्नमेंट। कौन बोरो करता है? बोरो या तो फर्म करेगी, या फिर कौन बोरो करेगा, या फिर गवर्नमेंट बोरो करेगी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करेगी। ठीक है, जब उसके उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे उसके इनकम से। और डिमांड फॉर बॉन्ड्स कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। बट लेट्स सी दिस इन टर्म्स ऑफ लोनेबल फंड्स, पैसा किसके पास है? ठीक है, जब हम कहते हैं कि डिमांड फॉर बॉन्ड्स या हाउस होल्ड जो है वो सेवर्स हैं, तो दैट मीन्स इन सेवर्स के पास सप्लाई ऑफ फंड्स है। कैन आई से दिस? ये इक्वेशन ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगी, ये पूरे के पूरे 2 पेजेस। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होने के लिए ये प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दिस थिंग, दैट डिमांड फॉर बॉन्ड जो है वो कौन करता है? वो हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड कहते हैं कि मुझे बॉन्ड्स खरीदने हैं, और जब वो बॉन्ड्स खरीदेगा तो देगा क्या वापसी में? उससे उसके बदले में देगा क्या? सप्लाई फॉर फंड्स, रुपीज मार्केट में लेके आएगा। सो सप्लाई ऑफ फंड्स जो है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, ये आपके हाउस होल्ड्स कर रहे हैं या फिर ये सेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यू कैन से दैट दीज आर पीपल हु डिमांड बॉन्ड्स, अगर आप कॉम्प्लिकेशन को समझ पाओ तो। और अब सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स कौन कर रहा है? फर्म्स या गवर्नमेंट कर रही है। और इसका मतलब क्या है कि दीज पीपल आर बेसिकली डिसेवर्स या बोरोवर्स, कहना आई कैन से कि बोरोवर्स हैं। और अगर बोरो कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर डिमांडिंग फंड्स, दे आर डिमांडिंग कैश। सो ये डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज बेसिकली योर बोरोवर्स, विच इज ईदर फर्म्स या फिर गवर्नमेंट। अब जहां पर ये दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और कितना आपके पास फंड्स मिले, बेसिकली सप्लाई इज इक्वल टू आपका डिमांड। नाउ अब पॉइंट आता है कि ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेव करना चाहेगा, क्योंकि उसको क्या होगा, एक हाउस होल्ड सेव किस किस चीज के लिए करता है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप सेव क्यों करते हो? या आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिले। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कि आई विल फोरगो माय, जो लेजर और लेबर का याद है, लेजर और लेबर का जो वो था रिलेशन था, कि अगर आपको ज्यादा वेज रेट मिलता है तो आप लेजर कम कर लोगे। रिमेंबर दैट डायग्राम? सेम चीज यहाँ पर भी होगी, एक हाउस होल्ड ये भी ये सेम चीज यहाँ पर भी करेगा। एक इंसान क्या करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो he will try to save more, because he will try to cut down on his current consumption and future consumption को देखते हुए कि मुझे बाद में ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा, मैं अभी कम कर लेता हूँ। So as rate of interest increases, a person would like to save more and lend more. But the opposite is true. If the rate of interest rises, then a person will not like to invest, क्योंकि उसको और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और उसके एक्सपेंसिव हो रहा है। तो हो सकता है एक प्रोजेक्ट मैं डीएलएफ की एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ। अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि मैं एक टाउनशिप लॉन्च कर दूं। बट अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%, तो हो सकता है कि मैं लॉन्च नहीं कर पाऊं, तो दैट मीन्स मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट भी ये सोचेगा कि यार मैं एक्सपेंडिचर तो कर रहा हूँ बट इसका पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, हाउ विल आई गिव बैक दिस मनी? सो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना कम बोरोइंग होगी, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा आप डिमांड करोगे बोरोइंग का। सो दैट इज द रिलेशनशिप कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग है। जहां ये दोनों मिल जाएंगे वहां आपका आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड दैट ऑल इज एक्सप्लेन्ड हियर। The level of government deficit is the portion of deficit that the government will try to choose and finance it by borrowing from the public. These are exogenous variable, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, और जो लेवल ऑफ बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है,
अब गिवन द प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट फंक्शंस आर वेरीड इनवर्सली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट ये है कि अगर इफ द फर्म वुड हैव पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर वेरियस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, if the rate of interest is high, fewer projects are profitable, net of interest cost, and at lower rate of interest more projects are possible. तो यहाँ पर आप ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाओगे. और डिमांड साइड पे मैंने आपको बता ही दिया कि डिमांड साइड पे जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या सप्लाई साइड ऑफ बॉन्ड मार्केट के ऊपर उतना ज्यादा आप बोरो कर पाओगे. ठीक है. सो कैन यू सी द सप्लाई साइड ऑफ बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट supply of bond is exogenous, business supply of bond is equal to investment expenditure, and investment varies inversely with rate of interest and also influenced by expected profitability. market के अंदर profitability कितनी है. all in all you need to understand is that the supply of bonds, which is also called as demand for funds, इसमें confuse मत करना, supply of bonds which is equal to demand for funds, डिमांड फॉर मनी. ठीक है. वो डिपेंड करता है किस किस चीजों पे, गवर्नमेंट के ऊपर, बट वो एक्सोजेनस है, वो हमारे हाथ में नहीं, हमें नहीं पता कि कितना होगा. ठीक है. फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर. अब इन्वेस्टमेंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे. प्रॉफिटेबिलिटी एक्सोजेनस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्स के साथ इनवर्स रिलेटेड है. ठीक है. और जो डिमांड साइड है ऑफ बॉन्ड विच इज द सप्लाई ऑफ फंड्स, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, फॉर गोइंग करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. ये हमें पहले से पता है. सो इस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम मिलता है. नाउ नाउ लेट अस सी दिस इक्विलिब्रियम. नाउ लेट अस सी कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है और किस तरीके से. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, बिकॉज ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा. या हाउ इज प्रॉफिटेबिलिटी एक्सोजेनस. ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी कह रहा है कि हमें पता नहीं है कि किस किस चीज, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ इफ देयर इज अ सिचुएशन, एकदम से वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ, तो व्हाट वुड यू थिंक कि प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सोजेनस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ वॉर? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो कि बेसिकली एनवायरनमेंट कैसा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है. कई चीजों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर. अगर कोविड आ गया तो अगर आपका बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस जो था वो क्या कहते हैं, से ओला या उबर चलाने का था, तो एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई आपकी. ठीक है. या आपका बिजनेस खाना बेचने का था रोड पे, तो एकदम से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली एक्सोजेनस, की बेसिकली आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कि ऑन एन एवरेज क्या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए. दैट इज एक्सोजेनसली गिवन डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, कोई और कोविड जैसी सिचुएशन तो नहीं है. सो ऑल दीज आर एक्सोजेनस शिफ्ट. जैसे कोविड के केस में आपको एकदम से दिखाई देगा कि आपके प्रॉफिट्स कम हो गए. ठीक है. तो एकदम से आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है अपने आप ही गिर जाएगा. सो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो एकदम से गिर सकता है, बिकॉज हो सकता है वॉर हो जाए, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, या फिर से कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर वो एकदम से अंदर शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो गई. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन कि इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, गिविंग दीज एग्जाम्पल्स, गिविंग रियल टाइम एग्जाम्पल्स, कि ये रीजंस हो सकते हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज that what happens. Okay, how does interest rate play a stabilizing role? How does interest rate play a stabilizing role in the classical system? We are assuming कि गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस है, तो उसका G is equal to T है. Now let us understand, पहले तो ये भी एक बार समझ लेते हैं.
आई का मतलब होता है कि ये फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट मांगा है, ठीक है। जी माइनस टी का मतलब कोई समझा सकता है? व्हाट इज जी माइनस टी? व्हाट इज दिस डिफरेंस जी माइनस टी से शिफ्ट हो रही है? बजट डेफिसिट, एग्जैक्टली बजट डेफिसिट। कि हम बेसिकली कह रहे हैं कि पैसा कौन कौन मांग रहा है, दिस इज डिमांड फॉर फंड्स ना। कौन कौन मांग रहा है? एक तो फर्म्स मांग रही हैं, वो मांग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सरकार भी तो मांग रही है, बट सरकार कितना पैसा मांगेगी? जितना उसने खर्च किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस जितना उसने टैक्सेस से कमा लिया। तो जी माइनस टी इज बेसिकली गवर्नमेंट डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट भी आप बोल सकते हैं, कितना पैसा उसने बोरो किया। तो दिस प्लस दिस इज बेसिकली द टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। नाउ वी आर अज्यूमिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, कि मान लो कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो बैलेंस है, जी इज इक्वल टू टी है। दैट मीन्स द ओनली सोर्स ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी इज बाय फर्म्स, और फर्म्स बोरो कर रहे हैं इज इक्वल टू आई, इन्वेस्टमेंट जितना उनको करना है ना। सपोज एक एक्सोजेनस इवेंट हो जाता है, जैसे मैंने कहा रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाती है, या फिर आप लिख सकते हो कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से लॉकडाउन हो जाता है। नाउ बिजनेस मैनेजर्स लोअर देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर लाइबा तुम्हारा पॉइंट आ जाता है कि अब एक्सपेक्टेशन कम हो गई, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट, आपका जो कर्व है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बोरो नहीं करेंगे ना, बिजनेस पे क्यों बोरो करेंगे अगर उनको पता है कि लॉस हो सकता है, तो बोरो करना बंद कर दे, कम कर देंगे। और सप्लाई ऑफ फंड्स यही है, तो उसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, कैन यू सी, कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहां से यहां गिरी, जिसकी वजह से आपका जो जो लोनेबल फंड्स का इक्विलिब्रियम है वो यहां हो गया, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। बट दिस मैकेनिज्म इज शोइंग यू समथिंग एल्स। इंटरेस्ट रेट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट नहीं होने देगा। कैसे? लेट अस सी दिस। अब जब इंटरेस्ट रेट, जब आपका ये कम हुआ है, हाँ, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, यहां से यहां पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो हाउस होल्ड हैं वो सेव कम करेंगे। यस, डू यू अग्री कि लोग सेव कम करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा? तो सेविंग्स हाउस होल्ड कम ही करेंगे ना अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। वो कहेंगे कि यार मेरे लिए सैक्रिफाइस ज्यादा करना क्यों, मैं अभी कंज्यूम कर लेता हूँ। दैट मीन्स अगर वो सेव कम करेंगे तो वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे। तो कैन आई से दैट दिस मूवमेंट फ्रॉम E0 टू E1 इज रिफ्लेक्टिंग, ये जो पार्ट ऑफ ए है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग फॉल इन सेविंग्स एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन। जितने से सेविंग कम होगी उतने से इन्वेस्टमेंट, उतने से कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग सेव कम करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट रेट कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग अब थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या होगा, फर्म्स जो है वो थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर देंगे। कैन यू सी कि वो यहां से यहां आ जाएगा। तो ये जो बी अमाउंट है, ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का अमाउंट है। सो व्हाट एसेंशियली हैज हैपेंड इज कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सोजेनसली इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई थी, बट आपका प्राइवेट सेक्टर ने इस तरीके से मूव किया अपना इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बट उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने अपनी कंजम्पशन बढ़ा ली और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, सो दैट कि इस इन्वेस्टमेंट के फॉल का एग्जैक्ट इक्वल आपने कॉम्पनसेट कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया।
जितने से इन्वेस्टमेंट इनिशियली कम हुई थी उतना ही अब्जॉर्ब कर लिया कंजम्पशन इंक्रीज ने और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ने। ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिरी थी और उसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो हो गए वो इंक्रीज हो गए, एंड दैट लेड टू अ कंप्लीट शॉक अब्जॉर्प्शन बाय कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बाय कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। और यही लिखा हुआ है, देखो ये देखो, आफ्टर द फॉल इन इन्वेस्टमेंट द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एक्सीड द डिमांड, जिसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर हो जाएगा इंटरेस्ट रेट पे। As the rate of interest declines, two adjustments occur. Savings decline, thus consumption increases. The amount of savings decline is equal to the current consumption marked by distance A, and the investment is somewhat revived by decline in. I'll just explain, Angela. The investment is somewhat revived by decline in interest rate. This is induced increase in investment as measured by distance B, and the equilibrium is restored at R1 where equilibrium वापस है. So the increase in consumption plus the increase in investment caused by drop in interest rate is distance is equal to A plus B, which is equal to the autonomous decline which was I bar. इतने से ही चेंज हुआ था, इतने से ही तो चेंज हुआ था आपका इन्वेस्टमेंट, और ए और बी ने कॉम्पनसेट कर दिया फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, and that is why you see that the sum of the private sector demands is unaffected by autonomous decline in investment. So this stabilizing role of interest rate is important for the classical system. Interest rate ने क्या किया, आपका इन्वेस्टमेंट, एंजेला दिस इज फॉर यू, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमसली गिरा था बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ओके, वही मैं समझा रहा हूँ, आपका वॉर हुआ, वॉर की वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार बॉस धंधा तो होगा नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल बिजनेस नहीं होगा, तो मैं बोरो क्यों करूं। तो अगर लोग बोरो कम करेंगे तो क्या होगा, बोरो डिमांड फॉर फंड्स जो है, बोरोवर्स की तो डिमांड थी ना, डिमांड फॉर फंड्स कम हो जाएगा, डी डैश हो गया, सप्लाई फॉर फंड्स तो यही था। तो इसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतना आपका चेंज हुआ ना, कैन आई से दिस इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये जो पैरेलल शिफ्ट हुआ है दिस इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ में आई मोहित आंजला कि दिस इज द शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट दैट हैज हैपेंड। ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, जब प्रेशर हुआ इस पॉइंट पे सप्लाई ऑफ फंड्स इज नाउ मोर देन डिमांड फॉर फंड्स, क्योंकि अब यहां पर आपका इक्विलिब्रियम तो यहां पर पहुंच गया। तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रेशर आना शुरू हुआ कि नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होगा तो उसकी वजह से सेविंग्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, जो हमें यहाँ दिख रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो सेविंग्स कम हो रही है, सेविंग्स कम हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो देर इज गोइंग टू बी, जो हम किनीशियन इकोनॉमिक्स में बोलते थे क्राउडिंग इन फैक्टर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गया, जो हमें यहाँ दिख रहा है। उसी पार्ट को ये बी पार्ट बोल रहा है और उसको ये ए पार्ट बोल रहा है। A part is reflecting the increase in consumption because of reduction in savings। यहाँ से यहाँ जो रिड्यूस हुआ वो सेविंग्स रिड्यूस हुई है, पहले इतनी सेव हो रही थी अब इतना सेव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। तो बी इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड ए इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन। जितने से इन्वेस्टमेंट गिरी उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ गई। तो एक तरफ आपका आई बार यू कैन से गिर रहा है और दूसरी तरफ आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी तो होता है। जितने से आई ऑटोनॉमसली गिरा उतने से ही सी और आई वापस बढ़ गया, तो एग्रीगेट डिमांड तो कांस्टेंट रहेगा ना। समझ में आया सबको? ओके, देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन।
people will be willing. Yes, एक मिनट प्रॉब्लम. Often then people would be willing not to try and invest, but then interest rates are putting pressure on investment. तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पाया. लाइव जस्ट मैसेज मी योर क्वेश्चन अगेन. मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं. So what we have understood here is that interest rate is like a shock absorber. It's like a shock absorber in the classical system. Any exogenous change that happens, this shock absorber will come into play and it will not let any change in aggregate demand affect. And this is what this is going to talk about. See, the stabilizing role of interest rate is important in the classical system. The interest rate adjustment is the first line of defense of full employment. Shocks that affect consumption demand, investment demand or government demand will not affect the demand for output as a whole, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के बाकी सारे कंपोनेंट्स में. These shocks will not shift aggregate demand curve in 4.2. Even if they did, कोई मान लो किसी रीजन की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट हो भी जाता है, there would not be any effect on output or employment because of the self-adjusting properties of the classical labor market, जिसकी वजह से aggregate supply जो है वो vertical. Then the most important part of this particular chapter actually relates to the policy implication. अब पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है? दो तरीके के पॉलिसी इंप्लीकेशन है, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि मनी सप्लाई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है बेसिकली कि अगर आप मनी सप्लाई चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका एग्रीगेट सप्लाई है, मनी सप्लाई आप चेंज कर दोगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ प्राइसेस मूव करेंगे. So therefore monetary policy, the quantity of money determines the price level and the level of nominal income. यही बात कर रहे हैं ना हम. हमारी इसके अंदर थ्योरी के अंदर क्या था, M जो है वो डिटरमिन कर रहा है प्राइसेस और वो अल्टीमेटली P into Y को डिटरमिन कर रहा है. ठीक है, इन दैट सेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू क्लासिकल सिस्टम. ठीक है, बिकॉज मनी जो है अगर वो स्टेबल नहीं है तो ये भी स्टेबल नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट ऐसे ही हाइपर इन्फ्लेशन होता है. अगर आपका मनी, या अपने हाइपर इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है. देयरफॉर स्टेबल मनी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबल प्राइसेस. बट एक दूसरे सेंस में यह है कि आप मनी कितना भी कर लो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आउटपुट के ऊपर. So in another sense, money is not important because money does not affect equilibrium values of real variables, output, employment and interest rate. तीनों को ही impact नहीं करता money हमारे यहाँ पर in classical system. So this is one of the things. Let's see the demand. Let's see the fiscal policy. Fiscal policy थोड़ी सी important हो जाती है. Fiscal policy के अंदर अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब तीन तरीके की चीज हो सकती है. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है, या फिर टैक्सेस, या फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर चेंज करेगी, या फिर अपने टैक्सेस चेंज करेगी, या फिर तीसरी चीज होती है कि प्रिंट न्यू मनी कर सकती है. प्रिंट मनी का हमें पता है कि प्रिंट मनी करते के साथ ही उसका सिर्फ इम्पैक्ट प्राइसेस पे होगा, ज्यादा मनी चेजिंग lesser amount of goods. So government has three sources of funds: taxation, selling of bonds and creating new money. Let us see कि creating new money तो बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज नहीं है. मनी अगर टैक्स चेंज करती है गवर्नमेंट तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन इशू आता है. टू इंक्रीज द स्पेंडिंग द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द टैक्सेशन.
sell additional bonds to public और इंक्रीज दी मनी सप्लाई, अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना है तो। ठीक है, अब ये मान रहे हैं कि मनी सप्लाई फिक्स्ड है, टैक्स कलेक्शन फिक्स्ड है, उन्होंने बॉन्ड्स यूज करें। ठीक है, बॉन्ड्स और बेचे और उसके उससे अपने इकोनॉमी को वो करा। नाउ लेट अस सी दिस, क्या हुआ, पहले आपकी इकोनॉमी यहाँ पर थी जहां पर गवर्नमेंट जो थी वो बैलेंस बजट थी, जी इज इक्वल टू टी था यहाँ पर। बट एकदम से इकोनॉमी में क्या हुआ कि फिस्कल पॉलिसी करी सरकार ने और उसने कहा कि मैं बोरो करूंगी और एक्सपेंडिचर करूंगी। तो अगर वो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेगी तो उसकी वजह से आपका ये जो कर्व है वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा, डिमांड फॉर फंड्स इतने से राइट में होगा। बट अगर इतने से बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, कैन समवन सजेस्ट व्हाई एम आई मूविंग ऑन दिस लाइन? If interest rate is increasing, then what will happen? Come on, folks. Savings increase. Perfect. Savings will increase, which essentially means consumption will, savings decrease नहीं, savings increase, ROI बढ़ेगा तो savings increase होगी, consumption will decrease। तो कंजम्पशन आपकी डिक्रीज कर जाएगी, सेविंग्स आपकी इंक्रीज कर जाएगी। और जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो जितने से गवर्नमेंट ने बोरो किया, जितने से गवर्नमेंट ने बोरो किया, जितने से उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उतने से ही कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, सो दैट एडी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। This again shows you that how interest rate changes in a self-adjusting manner, that changes in even in government expenditure will not have any impact on AD. This is exactly what is written here यहाँ पर। ठीक है, just check it out, you can read it. I will just read the last part. किसने लिखा है लाइव, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो प्लीज, it's too much of a text for me to read. I'll explain it. Then coming to this is exactly what is written. The figure shows a decline in consumption which is equal to the amount of increased savings A plus the decline in investment which is B, which is equal to the increase in government spending G minus T. Okay, so basically selling bonds to public pushes the rate of interest by enough amount to crowd out an equal amount of private expenditure, basically consumption plus investment. What if the government to basically government ये भी तो कर सकती है कि एक्सपेंडिचर बनाने के लिए पैसा प्रिंट कर दे। अगर पैसा प्रिंट कर देगी ज्यादा तो मनी, तो बेसिकली आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपके प्राइसेस सीधा बढ़ जाएंगे। Now, the only complication is with respect to tax policy. अगर आपने टैक्सेस चेंज कर दिए, ठीक है, स्पेशली टैक्सेस which are say इनकम टैक्सेस जैसी चीजें चेंज कर दी, देन व्हाट विल हैपन इज कि डिमांड साइड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिमांड साइड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने जितने से आपने कहा कि मैं टैक्सेस कम कर रहा हूँ उतने से आपको बेसिकली बाद में एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। So if the revenues lost because of the tax cut was replaced by money, then the increase in it will increase in government spending, which will ultimately lead to the same thing. So basically tax cut का कोई independent impact नहीं होगा aggregate demand पर। Just read this, you will understand कि कैसे tax rate cut का कोई impact नहीं होगा aggregate demand पे, जैसा हमने पिछले दोनों केसेस के अंदर बात करी थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का और मनी सप्लाई, मनी प्रिंट करने का कोई चेंज नहीं था, वैसे यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर आप टैक्स रेट कम कर रहे हो तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है,
अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो हो सकता है वो अपनी लेबर सप्लाई बढ़ा दें। रिमेंबर हमने कहा था कि लेबर सप्लाई इज जी सम फंक्शन ऑफ W/P। ये लेबर सप्लाई का फंक्शन लिखा था हमने। बट इसेंशियली लोग किस चीज से कंसर्न है? लोग कंसर्न है कि आफ्टर टैक्स मेरी कितनी इनकम है। सपोज किसी की पहले टैक्स रेट जो था वो पहले 0.8 था। दैट मीन्स उसका जो इनकम थी सपोज 100 रुपए रियल वेज, उसमें से 20 रुपए कट जाते थे। ठीक है, 0.8, ये इसको मान लो, इसको मान लो कि 0.2 है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका 0.8 रुपीज उसको मिलता था, दैट मीन्स 80 रुपए उसको मिलते थे। बट अगर ये टैक्स रेट हो गया 0.1, 10%, तो उस केस में अब उसको मिलने हैं 90 रुपए। अगर 90 रुपए मिल रहेंगे तो लोग अपनी सप्लाई ऑफ लेबर कम कर देंगे कि बढ़ा देंगे? अगर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप अपनी लेबर सप्लाई बढ़ाओगे कि कम करोगे? इंक्रीज करोगे। All of you agree that if the amount of money that I'm going to receive, the net amount of money that I'm going to receive is going to increase, then I will increase my labor supply. If my labor supply increases, then what happens is कि ये labor demand थी और ये labor supply थी, अब मेरी labor supply shift हो गई है। अगर मेरी labor supply shift हो जाएगी टैक्स कम होने की वजह से, तो मेरा ज्यादा काम होगा, मैं एम्प्लॉय ज्यादा करूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा, और आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपका एएस कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्राइसेस कम बन जाएंगे। सो रिमेंबर, अगर आपका फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस को इम्पैक्ट कर रहा है, फिस्कल पॉलिसी ऐसी कि टैक्सेस चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड साइड पे तो कुछ नहीं होगा, बट सप्लाई साइड पे लोग अपनी लेबर वेबर बढ़ा के, और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, this is the essence of this particular chapter. That's it. So this is an important chapter, folks. You will probably get a question on this one part, subpart as a question. So make sure that you complete this chapter. You don't leave this chapter out in the end. If you have more questions, you can always post it up to me on my WhatsApp. Most of you have my number. If you don't have it, this is 9899 444 and the course, this particular video will also be available on my YouTube. You can watch it there, or you can also watch it through the this thing, the web course that is there. Okay. So thank you. YouTube link you want, just a second. Dashboard. Hold on, I'll just post it. Just check, folks, if this is my YouTube channel. Yes, this is my YouTube channel. You can, okay, great. So you can watch it there. You can WhatsApp your doubts to me if you have, and if I can take, I will probably try to take one more session on inflation, because that is one more topic that will give you a numerical. So let's stay connected. Thank you very much, folks. See you. Good night. Bye. All the best.